Hello and welcome to the amendment classes. You know, for so long, in fact 14 years, all I've been doing is teaching in the classroom. I still believe the face-to-face teaching is the most effective mode of communication between the teacher and the student. पर क्या ना आजकल technology is available wherein the classroom teaching must be supported through online modes as well. So here comes the amendment classes. A lot of students who've studied from me over the past year or years and now want to look at only the changes which are applicable for the May 14 attempt. So through this mode, what I'm going to be doing is taking you through all the amendments for IPCC which are also applicable for the CS and the CWA attempt for June. Now, the tricky part about amendments being the changes are small, पर उसके जो इफेक्ट हैं उसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा. Not just what the changes, but उसको कहां पर अप्लाई करना है उसके बारे में क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे. So what I'm going to be doing is I'm going to be taking you through the section. भाई ये अमेंडमेंट हुई है, इसका ये इफेक्ट होता है, एंड देन उसका एक क्वेश्चन. देन फॉर पीपल हु वांट टू टेक, वी आल्सो हैव द प्रोविजन फॉर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये देखने के लिए कि आपको वो समझ में आया नहीं आया, यू कैन देन टेक द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द अमेंडमेंट्स. So let's look at how the amendments are. I'm going to be recording the amendments section wise. So जितनी भी amendments हैं, the module, the notes that are given over here are given as part of this package. You can see them on the screen and you can even mark them over there. If you look at the first amendment, it's been in the rates of tax. Now rates of tax क्या थे? Now concentrating on the individual, the rates of tax we know, on the first 2 lakhs, there was nil tax. Then total income जो 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, उस पर रेट ऑफ टैक्स वॉज 10%. 5 लाख से लेके 10 लाख की टोटल इनकम पे टैक्स वॉज 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम पे टैक्स इज 30%. Then there was a cess, we said education cess of 2% and secondary higher education cess of 1%. We also know कि जो सीनियर सिटीजन है एंड रेजिडेंट है, एंड सीनियर सिटीजन कौन है? 60 साल से ज्यादा बट लेस देन 80 years, then the slab becomes 2,50,000 and 2,50,000 till 5 lakhs 10%, 5 to 10 lakhs 20%, and more than 10 lakhs 30%, and the cess remains the same. फिर एक वेरी सीनियर सिटीजन था, अगेन रेजिडेंट, मोर देन इक्वल टू 80 years of age, पहले 5 लाख तक there is nil tax. Then 5 to 10 there is a 20% tax. Remember 10% वाला slab इस senior citizen के लिए नहीं है. And then more than 10, 30%, and of course cess remains the same. ये तो थे पिछले साल 12-13. क्या ये इस साल बदले हैं? नहीं. The rates remain exactly the same. Now what has changed is that they've added something called surcharge. अच्छा, surcharge क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर को इंडिया का बजट संभालने के लिए पैसा चाहिए, एंड समटाइम्स व्हेन द इकोनॉमी इज डाउन, जैसे कि आजकल हमारे देश में people are not earning as much, maybe they're not paying as much tax, so he needs more money.
सो वो एक टैक्स का रेट बिना बढ़ाए कुछ सालों के लिए कुछ पैसा और इकट्ठा करना चाहेगा, वी कॉल दैट सरचार्ज। टिल लास्ट ईयर कंपनी को सरचार्ज लगता था। रिमेंबर, अ फॉरेन कंपनी वॉज लेविड अ सरचार्ज ऑफ 2% एंड अ डोमेस्टिक कंपनी वॉज लेविड अ सरचार्ज ऑफ 5% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। इस साल से सबको all persons, whether it is individual, firm, HUF, LLP, AJP, AOP and BOI, इन सबको सरचार्ज लगेगा and the surcharge will be at the rate of 10% of the tax if total income exceeds 1 crore. So what we basically do is we calculate tax A, we add surcharge only if total income exceeds 1 crore at the rate of 10% of A, we get A plus B. अब जो हम एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 2% will be of A plus B and secondary higher education cess of 1% again इसका होगा, ये आपका टोटल टैक्स आएगा। In case of companies, the rates of surcharge have changed. उसने क्या किया? वही 5% का सरचार्ज है इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, बट अब लिमिट डाल दिया लेस देन 10 करोड़। और अगर टोटल इनकम कंपनी की 10 करोड़ से ज्यादा है देन द सरचार्ज रेट गोज अप टू 10%। मतलब जो पिछले साल के सरचार्ज के रेट्स थे वो सेम है, पर वो अब तब तक लगेंगे जब तक टोटल इनकम 10 करोड़ नहीं। 10 करोड़ के ऊपर द रेट नाउ गोज टू 10%, बट दिस इज ओनली फॉर कंपनीज। एंड फॉरेन कंपनी के लिए पहले रेट ऑफ सरचार्ज 2% होता था, अभी भी वही है, बट अब है एक्सीड्स 1 करोड़ बट इज लेस देन 10 करोड़। और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो फॉरेन कंपनी के लिए अब सरचार्ज का रेट हो गया 5%। बिकॉज द सरचार्ज हैज बीन एडेड, रिमेंबर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट बदल जाएगा। द CDT रिमेंबर वाज 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। अब जो रेट ऑफ सरचार्ज हो गया 5 की जगह यहां 10 लेंगे, सो इट बिकम 16.995% फ्रॉम दिस ईयर। लेट्स कैलकुलेट टैक्स फॉर अस। हम इनकम लेते हैं इंडिविजुअल की। अगर इंडिविजुअल की टोटल इनकम लेट्स से इज 90 lakhs, दिस इज टोटल इनकम। 90 लाख पे वी नो अप टू 10 lakhs, एज्यूम 2 लाख वाला स्लैब है तो वो आ जाएगा 1,30,000, विच इज 2 lakhs पे नील हो गया। 2 to 5 lakhs पे 30,000 एंड 5 to 10 lakhs पे 1 lakh. Now in excess, that is 80 lakhs पे it will be at the rate of 30%, which is 24 lakhs. So tax आ गया 25,30,000। अभी क्योंकि टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, देयर इज नो सरचार्ज and then there is a cess of 2% and 1%. Okay. There is one more amendment. We will come to the surcharge part. He has added a section called 87A, rebate दिया। ये क्या कहता है? आप लोग सुने ध्यान से। What does the section 87A say? It says for a resident individual, for a resident individual,
whose total income is less than or equal to 5 lakhs. So दो बातें हैं, एक रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल है, एंड टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs. तो कहता है एक रिबेट देंगे. अब सुनो जरा, रिबेट कितना दे रहा है, लुक एट इट, अप टू 2000 रुपीज. अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? लेट्स से टोटल इनकम इज 4,20,000 रुपीज. चले, बिना रिबेट के कैसे आएगा? क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है, सरचार्ज तो लगना नहीं है. पहले 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल हो गया. नाउ 2,20,000 पे 10% comes to this much. Because assuming he is a resident and we assume he is a non-resident. अगर वो रेजिडेंट है तो इस 22,000 में 87A का रिबेट मिल जाएगा अप टू 2,000, सो 2,000 रुपए, एंड देन वी गेट 20,000. आफ्टर दिस यू विल एड सेस 2% एंड 1%. So your tax becomes this much. पर अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो 22,000 में से कोई रिबेट नहीं मिल रहा है, और सेस और ऐड करके द टैक्स वुड बी हायर. सो अ रेजिडेंट इज गेटिंग अ रिबेट ऑफ अप टू 2,000 रुपीज. उसका 2,000 रुपए टैक्स बच जाएगा अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है. दैट्स अ सिंपल लॉ. लेट्स टेक अनदर वन. अगर उसकी टोटल इनकम 2,10,000, अभी हम सिर्फ रेजिडेंट की बात करेंगे. यू कैन बाय नाउ सी दैट इस पे 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 10,000 पे 1,000 रुपया टैक्स लग रहा है. रिबेट इस पे कितना दें? तो हमने नहीं बोला रिबेट 2,000 रुपया, हमने बोला रिबेट इज अप टू 2,000 रुपीज, which means you will only get a rebate of 1,000 and the tax will be nil. Which actually means जिस बंदे की टोटल इनकम 2,20,000 तक है उसको अब टैक्स नहीं लगेगा. There is no tax. अगर उसकी टोटल इनकम is more than 220 तो टैक्स लगेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 लाख तक निल हो गया, 20,000 पे 10% इज 2,000 रुपीज, ये रिबेट हो गया, उसका टैक्स हो गया निल. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये रिबेट है. जो रिबेट है वो बेटा टैक्स में से दिया जाएगा. द रिबेट विल बी गिवन फ्रॉम टैक्स. मिनिमम एग्जेम्पशन नहीं बढ़ा है, मिनिमम एग्जेम्पशन स्टिल रिमेन्स 2 lakhs. इसका इफेक्ट कहां आएगा? लेट्स गो एंड चेक अ फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स से देयर इज अ पर्सन हुज जीटीआई इज 5,10,000, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A is 1 lakh, and let's say lottery is 2 lakhs, which means his normal income is 1,10,000. लेकिन उसको डिडक्शंस मिली अभी अंडर सेक्शंस 80C टू 80U. लेट्स से 20,000 रुपए की डिडक्शंस. Therefore, total income now becomes 490. Now, as we know, स्पेशल इनकम्स में से मिनिमम जो डिडक्शंस है, सॉरी, 80C टू 80U की नहीं मिलती है, विच मीन्स दिस 20,000 इज गिवन फ्रॉम हेयर. देयरफॉर, 'therefore, 'टोटल इनकम में अब ये 90,000. 'टोटल इनकम में अब ये 90,000 है. 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 'टोटल इनकम में अब ये 90
Now we have to calculate tax. We know when we are calculating tax, first we calculate tax on normal income. I am assuming the minimum exemption slab to be 2 lakhs. Minimum exemption slab. अच्छा बेटा ये ना अमेंडमेंट्स हैं, मैं तुम्हें दोबारा से पूरा सेक्शन या टैक्स के रेट्स नहीं करवा पाऊंगा. सो अगर आपको ये भूल गए हैं, आप पहले जाके इनको रिवाइज करें, फिर इस लेक्चर को सुने, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. आई एम नॉट teaching the section again, I am showing you what the amendment is